سابق صدر آصف علی زرداری نے پنجاب سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ بہاڑی میں پرہجوم ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا پاگل خان ہمیں ایسے دلدل میں پھنسا گیا، بڑی مشکل سے پار لگیں گے۔ پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا جنوبی پنجاب کا خیال رکھا۔ یوسف رضا گیلانی کو جب وزیر اعظم بنایا، جنوبی پنجاب کا پورا بجٹ دیا۔ جنوبی پنجاب ہماری اپنی دھرتی ہے۔ پاگل خان ہے، اس نے ایسا کھانا خراب کیا پاکستان کا، اکانومی کا، ایسی دلدل میں ہمیں پھنسا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پار لگیں گے۔ وہ سوچ نہ آ سکی جو میں سوچ رہا تھا اور اس سوچ پہ نہیں چل سکے، مگر انشاءاللہ آج نہیں کل ہوگی۔ میں نہیں کروں گا، بلاول کرے گا، بلاول نہیں کرے گا، آصفہ کرے گی۔ انشاءاللہ یہ قوم کی خدمت ہمیں بی بی صاحبہ کا ہدیہ ہے، ان نے کہا ہوا ہے اور دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے آج شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سجا لیا۔ مریم نواز جنڈیالہ روڈ پر بڑے کنونشن سے خطاب کریں گی، مزید بتا رہے ہیں غلام علی کھوکر۔ جی غلام علی بتائیے۔ شیخوپورہ جنڈیالہ روڈ پر آج مسلم لیگ نون ورکر کنونشن کر رہی ہے، جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شام 7 بجے عوامی جلسہ سے خطاب کریں گی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جلسہ گاہ جو ہے اس میں 10,000 کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ جنڈیالہ روڈ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور آمد و رفت کے لیے جو پوائنٹ بنائے گئے ہیں وہاں پر واک تھرو گیٹ بھی لگا دیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ 25 فٹ اونچا اور 40 فٹ لمبا اسٹیج بھی تیار کیا گیا، جس پر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شام 7 بجے عوامی جلسہ سے خطاب کریں گی۔ جی دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے حلقے 266 سے پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے ممتاز چاند نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ڈاکو راج قائم ہے۔ 5 ایس ایچ اوز ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں اور ان ایس ایچ اوز نے کچے میں زرعی زمینیں لے رکھی ہیں۔ مار یہاں پہ پنجاب پولیس یہاں پہ کر رہی ہے۔ پولیس افسران نے وہاں پہ جو ہے زمینیں ٹھیکے پہ لے کے رکھی ہوئی ہیں، خرید کی ہوئی ہیں۔ اگر کچے کے حالات عام آدمی کے لیے خراب ہیں تو کچے میں پولیس والوں نے کیسے جا کے زمینیں لی، ان کے بالکل واسطے ہیں۔ اور ڈاکوؤں کو تو ختم نہیں کیا، مگر یہاں عوام پہ ظلم پوری طرح وہ اپنا کر رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے کچے میں ڈاکو انڈسٹری کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ گھوٹکی میں کچے کے علاقے سے 3 مغوی بازیاب، صادق آباد سے مزید 1 اغوا کر لیا گیا، جبکہ ذرائع کے مطابق مغوی کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا۔ اغوا کاروں نے مغوی کو وہاڑی سے صادق آباد بلایا اور اغوا کیا۔ وہاڑی میں اغوا کا مقدمہ درج FIR GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ اور بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے خیرپور کے قریب 16 دن بعد ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کے قتل کے خلاف 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقتول نوجوان مظہر کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے 16 افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا تھا، جنہیں رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا۔ بہاولپور میں ہرن کا شکار خود شکاری بن گیا۔ چولستان میں نایاب ہرنوں کے شکاری کو محکمہ جنگلی حیات نے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کی خلاف ورزی پر 1,30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رانا سلیم سے۔ جی رانا سلیم بتائیے۔ جی یہ بہاولپور علاقہ ہے چولستان میں ٹوبہ لنگا والا ٹوبہ، یہاں پر ملزم نواز جو ہے یہ نایاب ہرنوں کا شکار کر رہا تھا، جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تنویر احمد جنجوا نے وائلڈ لائف بہاولپور کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 گن اور اس کا موٹر سائیکل اور سرچ لائٹ برآمد ہوئی۔ ملزم کو وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت 1,30,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ مزید کارروائی جو ہے وہ کورٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا، جو آگے کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا رانا سلیم۔ اور کنکوٹ میں کچے کے علاقے میں پولیس نے آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانے تباہ کر کے انہیں آگ لگا کر جلا ڈالا۔ آپریشن میں سارے 6 پولیس اہلکار APC اور بختر بند گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ SSP عرفان سمو کے مطابق ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ مزید بتائیں گے قدرت اللہ۔ جی قدرت اللہ بتائیے۔
जी बिल्कुल, कंदकोट पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के मुख्तलिफ गैंग्स के खिलाफ भारी नफरी के साथ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी इरफान अली समो कर रहे हैं, जिसमें 30 पुलिस मोबाइल, 5 बख्तरबंद गाड़ियां, 3 एपीसी चैन समेत 300 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया है। एसएसपी इरफान अली समो का कहना है कि हमने डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह करके मजीद 5 कैंप भी कायम कर दिए, जिसमें 250 पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। अब तक कच्चे में 12 पुलिस कैंप और 650 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हर मुमकिन कोशिश करके डाकुओं का खात्मा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका कुदरतुल्लाह। और सिंध के अवाम आटे के लिए दरबदर, महकमा खुराक के मुलाजमीन अरबपति बन गए। ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद समेत सिंध के दीगर अजला में महकमा खुराक सिंध का बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। अरबों रुपए मालियत की गंदुम गायब कर दी गई। 7 फूड इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स ने अरबों रुपए मालियत की गंदुम फरोख्त कर दी। सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर ने मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। 7 फूड इंस्पेक्टर्स लाखों मेट्रिक टन गंदुम घुन की तरह चाट गए। मोमन में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जिला भर में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। हक दो तहरीक के ऐलान पर सियासी और समाजी तंजीमें और अवामी हलके सड़कों पर आ गए। ताजिरों और दुकानदारों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने पेशावर, बाजोड़, शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। और उधर खानेवाल में गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, मगर खाद डीलर्स की हड़ताल के बायस किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। मजीद बताएंगे सईद भट्टी। जी सईद भट्टी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, गंदम हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ और ज़िला खानेवाल का शुमार सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले ज़िला में होता है। और खानेवाल में इस वक्त गंदम की फसल जो है तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि खाद का जो बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ज़िला खानेवाल के अंदर खाद डीलर की जानिब से आज 10वें रोज़ भी हड़ताल जारी है। जब हमारी खाद डीलर से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िलाई इंतज़ामिया हमें बिला वजह परेशान करती है। मुख्तलिफ जगह पर हमारे जो खाद डीलर हैं उनके ऊपर बिला वजह FIR दी गई हैं, जिसकी वजह से इन हालात के तहत हम खाद की सप्लाई जो है वो जारी नहीं रख सकते। काश्तकारों ने हुकूमत से वक्त से मुतालबा किया रहा कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए और खानेवाल के अंदर जो खाद की सप्लाई बंद की हुई है इसको बहाल करवाया जाए और खाद डीलर के हवाले से जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और उनको खाद की सप्लाई दी जाए। जी। और मीरपुर खास में शब बारात के मौके पर फूल फरोशों ने फूलों की कीमत में 200 से 300 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया। फूलों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हो गए हैं। अनवर बरोही की रिपोर्ट। मीरपुर खास में कल तक 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले फूल शबे बारात के मौके पर 500 से 600 रुपए में फरोख्त होने लगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर अब फूलों की कीमत में भी इजाफा सरासर जुल्म है। अभी रेट है 600 रुपये किलो फूल का, जो कल था 200 रुपये मिल रहे थे। आज के दिन जो शब बारात का दिन है बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए हवाले से इन्होंने आज इतने महंगे फूल कर दिए हैं। अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा करने वाले फूल फरोश कहते हैं कि हमें हैदराबाद से महंगे रेट में फूल मिला है और मजबूरन फूलों की कीमत में इजाफा किया है। वजह असल में इसलिए होती है कि अगर रेगुलर के अंदर अगर 100 किलो की खपत है तो आज के दिन शबरात के अंदर 200 किलो 250 किलो की खपत हो जाती है। परेशान हाल शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शब बारात पर फूलों की कीमत कम कराने के लिए फौरी मुतहरिक हो ताकि लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ा सके। कैमरा टीम के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। शब बारात के मौके पर रिवायती तौर पर फूलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद में गुलाब 600 रुपए और पत्तियां 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी हैं। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर जैदी, बताइए। जी बिल्कुल, शब बारात पे फूलों की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पे फूल चढ़ाने के लिए फूल खरीद के ले जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फूल फरोश मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं कि फूलों की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया गया। एक तो खाद महंगी है, दूसरी जो है ना फसलें बारिश की वजह से काफी तबाह हो चुकी है। महंगाई है, पेट्रोल महंगा, भाड़ महंगा, खाद महंगी, दवाई महंगी, इस वजह से रेट ऊपर हो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो बारिशें हुई थी और सैलाब आया था जिसके बाद जमीनों पे तबाहकारी हुई है, खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए फूल की कीमत जो है वो आज 600 रुपए किलो में जो है साबुत फूल जो है फरोख्त किया जा रहा है। जबकि शहरियों का कहना ये है कि शब बारात है, ये मुसलमानों का त्यौहार है, लोग अपने प्यारों की कब्रों पे फूल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन फूल की कीमतें इतनी ज्यादा है कि आज जो है लोग फूल खरीदने से भी कासिर हो गए हैं। जी।
शब बारात गुनाहों से इस्तग़फ़ार की रात है। नवाब शाह में आज भी कब्रिस्तानों की हालत तसल्ली बख्श नहीं। कब्रिस्तानों में ना तो रोशनी का इंतज़ाम है, ना ही सफाई की गई है। मज़ीद जानेंगे इरफान अरशद से। जी इरफान, बताइए। जी, शब बरात इबादत की रात है। इस रात लोग इबादत के साथ साथ अपने प्यारों की कब्रों पर फातह करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। मैं आपको बता चलूँ, मैं सब मौजूद हूँ नवाब शाह के कदीमी कब्रिस्तान हाजी नसीर कब्रिस्तान में, जहाँ पर जो है दीवारें टूटी हुई हैं, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। झाड़ियों की वजह से जो है लोगों को अपने पैरों की कब्रें ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कचरा पड़ा है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, दीवारें भी टूटी हुई हैं, ना लाइटिंग का इंतज़ाम है। लोग रात को आएंगे, कैसे आएंगे, परेशानी हो रही है, झाड़ियाँ भी बहुत हैं इधर। जैसा कि उन्होंने कहना है कि यहाँ पर रोशनी का मुनासिब इंतजाम नहीं है। उनका अलावा का मुतालबा है कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम को बेहतर किया जाए, रोशनी का इंतजाम किया जाए, ताकि रात को आने वाले शहरी जो हैं उन्हें अपने प्यारों की कब्रों पर फातह करने में किसी परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी। और चिन्यूट में भी शब बारात के हवाले से कब्रिस्तानों में रश बढ़ गया है। शहरी अपने प्यारों की मग़फ़िरत की दुआओं में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे काज़िर बहादुर अली से। जी काज़िर बहादुर अली, क्या मनासिर हैं? जी बिल्कुल, आज शब बारात की रात है और कौन चिन्यूट के शहरी हैं, उन्होंने कब्रिस्तानों की तरफ रुख कर लिया और यहाँ पे आके अपने प्यारों की कब्रों पे आके फातह खाने भी की जा रही है। यहाँ पे कौन से पोए हैं वो भी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कब्रों की लबाइयों भी कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे कुछ शहरी मौजूद। हम अपने प्यारों की कब्रों पे आए, बड़ों की, हमारों की कब्रें सबकी यहाँ पे, तो ये साल के बाद ये दिन आता है, हम यहाँ पे आते हैं, इनकी कब्रों पे फूल वगैरह डालते हैं, सफाई करते हैं। बिल्कुल, हमने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये साल बाद ये दिन आता है और हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आते हैं, यहाँ पे आके फातह खाने भी करते हैं और यहाँ पे कब घरों में जाएंगे और वहाँ पे जाके उनके नाम पे ख़त्म दिलवाएंगे। जी। और जेहलम में शहरी शब बारात अक़ीदत व एहतराम से मना रहे हैं। लोग कब्रों की सफाई के लिए कब्रिस्तान पहुँच गए हैं। बिछड़ने वाले प्यारों की मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं। मज़ीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी मिर्ज़ा जवेर, आगाह कीजिए। मैं इस टाइम में मौजूद हूँ जेलम के मरकज़ी कब्रिस्तान में। यहाँ पे आज हमने देखा है कि जो लोग यहाँ से, जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों पे यहाँ पे आज फातिहा खानी भी की जा रही है और यहाँ पे कब्रों को भी साफ़ किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा। कब्रिस्तान और अल्लाह की इबादत को आज रात हो सकता है, कल अगली शबात हुई है या ना हुई है, आज रात फैसला होना है किस मरना है किस जाना है। और यहाँ पे हमने देखा है कि जेलम के जो शहरी हैं, यहाँ पे आज अपने जो प्यारे यहाँ से दुनिया से चले गए हैं, उनकी यहाँ पे कब्र पे फातिहा खानी भी की जा रही है। यहाँ पे फूलों की चादरें भी बिछाई जा रही है। मैं आपको बता चलूँ, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे आज कब्रिस्तान में सफाई के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जी। सरगोदा में भी शब बारात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गुलाब और गेंदे के फूलों की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं जावेद शाह। जी जावेद। जी, आज सरगोदा में शब बारात इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद को सजाया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है, हर तरफ खुशियों का समय है। फूलों की शाह पर फूल खरीदे जा रहे हैं जो अपने प्यारों की कब्रों पे डाले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ फूल लेने के लिए आया हो, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फूल वगैरह खरीद रहा हूँ जो कि कब्रिस्तान में ले जाने अपने प्यारों की कब्रों के लिए, वहाँ फातिहा शरीफ पढ़नी है। और शब बारात का जो मौका है बिल्कुल हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ईद की तरह ही है, जिस तरह ईद मनाई जाती है ईद की तरह मना रहे हैं। जैसा कि शहरियों का कहना है कि हमने अपने घरों को सजाया है, अपनी मसाजिद को सजा रहे हैं, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, हर तरफ खुशियों का समय है। जी। कोट डेजी में शब बारात के मौके पर सन्नाटा छाया हुआ है। महंगाई के बायस फूल फरोश परेशान है। मजीद जानेंगे शाहिद सुमरों से। जी शाहिद। आज बिल्कुल जो है वो आज शब बारात की रात है और इतनी बड़ी रात जिसका इंतज़ार पूरा साल होता है। और अगर गरीब क्या, अमीर क्या, मज़दूर क्या, जॉब वाला क्या, सभी लोग जो है वो अपने मरहूमीन को जो है वो कुरान ख़वानी करवाते हैं और तरह तरह के ताम बनाते हैं। लेकिन इस महंगाई ने जो है वो खुसूसी तौर पर 2023 की जो महंगाई है उसने जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। अब लोग जो 2 वक्त का खाना नहीं जो है अपना पूरा कर सकते तो वो किस तरह से जो है वो ख़त्म और कुरान देंगे अपने मरहूमीन को, ये एक सोचने की बात है और हुकूमत वक्त को इस पर सोचना भी चाहिए। जी। और आज़ाद कश्मीर के इलाक़े खड़ी शरीफ में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा पीर शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 120वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तक़रीबात जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पहुँचकर हाज़िरी दे रही है। मज़ीद बता रहे हैं उसामा खिज़र। जी उसामा, क्या कहमा कहमी देख रहे हैं?
देखिए बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़िया वाली सरकार के 120वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज तकरीब का दूसरा रोज़ है और हमने देखा है कि अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आना शुरू हो चुकी है। मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से अकीदतमंद यहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दरबार को आने वाले रास्तों में जगह जगह नाके लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। रात को यहाँ पर जो महफिल है वो भी होगी और सैफुल मुल्क भी यहाँ पर पेश की जाएगी। जी। और हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव शाहमंद में हज़रत बाबा इलाही बख्श गिलानी का 4 रोज़ा उर्स और सकाफती मेला शुरू हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में पहुंच रहे हैं। अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव शहामद में हज़रत बाबा इलाही बख्श गिलानी का 4 रोज़ा कदीम उर्स व सकाफती मेला शुरू हो गया। इसका शुमार पंजाब के चंद बड़े मेलों में होता है। खाने पीने के स्टॉल्स और बच्चों की तफरीह के लिए झूले लगते हैं। मेले की वजह शोहरत यहाँ होने वाला घोड़ों का डांस है। मुल्क भर से लाए गए सजाए हुए घोड़े जब झूमर नाच, रेड, लंगूरी और धमाल डांस पेश करते हैं तो शायकीन दाद देने और नोट निछावर किए बगैर नहीं रह सकते। कदीम व सकाफती मेला का इंतजार घोड़ों का डांस देखने वाले शायकीन साल भर बड़ी बेताबी से करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। ठट्टा में अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से दरगाह पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। अब्दुल अजीज़ जोगी की रिपोर्ट देखिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह के 384वीं सालाना उर्स की तकरीबात ठट्टा के शहर खामोशा मकली में जारी हैं। कराची, हैदराबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से उर्स तकरीबात के दूसरे रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंची हुई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमने इधर 390 के करीब एहलकार तैनात किए हैं, जिसमें लेडीज़ कांस्टेबल भी हैं और इसके अलावा हमारे रूफ टॉप्स भी हैं जिनको हमने इधर लगाया। सिक्योरिटी की अभी सिलसिला जारी है और हम इसको पूरे मज़ार को स्वीप और सर्च कर रहे हैं। दरगाह के दाखिली दरवाज़ों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं और ज़ायरीन को ज़रूरी चेकिंग के बाद अहाता मज़ार में दाखिले की इजाज़त है। ख़वातीन एहलकारों समेत 300 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल अजीज़ जोगी, GTV न्यूज़, ठट्ठा। और उधर नौशेरा ज़ियारत काका साहब में महफिल मिलाद की पुरनूर महफिल सज गई। महफिल में सूबे के जय्यद उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। नौशेरा के इलाके ज़ियारत काका साहब में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नौशाद काका हेल की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे भर से उलमाए कराम और नातख़्वानान के साथ साथ आवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस पुरनूर और पुरवकार महफिल के मेहमान हसूसी मुमताज आलिम दीन साहबजादा मुफ्ती गौहर अली शाह बादशाह थे। जब आतिश नमरूद का बाजार गर्म था, उसके करम ने आग को गुलजार बनाया। इस बार बरकत और रूह परवर महफिल में मारूफ नातख़्वानों ने नात ख़्वानी की, जबकि दीगर शुरका ने हुजूर पाक की सुन्नत और जिंदगी की वाक़ियात बयान किए। इंशाअल्लाह ये लम्हात निहायत कीमती हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू बादशाह साहब मरहूम मग़फ़ूर की रफ़े दरजात का इसको ज़रिया फरमाए और आप सबको, हम सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। आखिर में मरहूम पिता मोहम्मद काका हेल के इसाले सवाब के लिए दुआ के साथ मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी गई। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। एक्साइज पुलिस की कार्रवाई के बारे में बात करेंगे। मर्दान में एक्साइज पुलिस ने सवाबी इंटरचेंज के करीब कार्रवाई करके देसी शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार करके देसी शराब की 4000 से ज़ायद बोतलें और 20 बड़े गैलन बरामद कर लिए गए। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नौशेरा पुलिस ने कार्रवाई करके मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि कब्जे में ली गई गाड़ी के खुफिया खानों से 95 किलोग्राम चरस और 50 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। मंशियात पेशावर से पंजाब स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
غازی احمد کے قریب قومی شاہراہ پر مسافر کوچ ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 5 مسافر زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت عارف کے نام سے ہوئی ہے، جو کوچ کا ڈرائیور تھا۔ مسافر کوچ کراچی سے صادق آباد جا رہی تھی۔ گزشتہ بارشوں کے بعد ضلع خیرپور کے شہر گنبٹ کی تمام سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ سراج عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ بارش اور سیلاب کو گزرے 8 ماہ ہو چکے، مگر ضلع خیرپور کے شہر گنبٹ میں متاثرہ سڑکوں کی اثر نو تعمیر تاحال نہ ہو سکی۔ خستہ حال اور کھنڈر نما راستے شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ گنبٹ میں جو یہ روڈ راستے ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جیسا گنبٹ میں گمس بنایا ہے اس حوالے سے یہاں روڈوں کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ کہ روڈز آج جو ہے نا اس خستہ حال میں پہنچ کے ایک کھنڈرات کا شہر دے رہا ہے، تو گورنمنٹ کو اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ گنبٹ شہر میں ایک طرف تو ترقیاتی کام کئی سالوں سے التوا کا شکار ہیں، مگر دوسری جانب چلنے کے لیے راستے بھی دشوار ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے صحیح سرکار کے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ سڑکوں کو جلد از جلد از سر نو تعمیر کیا جائے تاکہ عوام کی پریشانی کم ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سراج عباسی، جی ٹی وی نیوز، گنبٹ۔ اور قصور کی تحصیل چونیا کے مشہور زمانہ چھانگا مانگا جنگل میں شجرکاری مہم شروع کر دی گئی۔ مہم کے دوران 140 ایکڑ رقبے پر 1 منٹ میں 1 لاکھ پودے لگائے گئے۔ مہم میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر قصور کا کہنا تھا کہ چھانگا مانگا جنگل ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ مہم سے جنگل کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ کمالیہ میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ بچوں اور سول سوسائٹی کے افراد نے پودے لگا کر مہم شروع کر دی۔ مزید بتائیں گے ندیم عباس قمر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ندیم عباس۔ ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج 2 اسٹار شوگر مل کمالیہ میں بھی شجرکاری کا آغاز کر گیا ہے، اور شجرکاری کا افتتاح ایڈمن ایڈوائزر کرنل ریٹائرڈ ریاض صاحب نے کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ ہر سال کی طرح 2 اسٹار انڈسٹری اپنا حصہ شجرکاری مہم میں ڈال رہی ہے۔ انشاءاللہ اس مہم کے دوران ہم 2 سے 3 سکولز میں ان بچوں کو ہم پودے پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ اپنی مل کے ارد گرد جو بھی علاقے ہیں اس میں تقریباً 1000 سے 1500 پلانٹس ہم لگائیں گے۔ جی، جیسا کہ کہنا ہے کہ 2 اسٹار شوگر انڈسٹری یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں پودے لگائے گی تاکہ ماحول کو سازگار کیا جا سکے۔ جہلم کے سرکاری گرلز کالج میں سول ڈیفنس کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار اور فرضی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ طالبات نے ہنگامی صورتحال میں فرسٹ ایڈ دینے اور آگ بجھانے کے لیے عملی مظاہرہ کیا۔ مرزا جویر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام جہلم کے سرکاری گرلز کالج میں آگاہی سیمینار اور فرضی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ موک ایکسرسائز میں جہلم پولیس کے جوانوں اور کالج کی طالبات نے بھی حصہ لیا۔ طالبات نے اس تربیتی سیشن کو بے حد سراہا۔ فرضی مشقوں کے عملی مظاہرے کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروقی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، چیف وارڈن سول ڈیفنس نے خصوصی شرکت کی، اور ڈپٹی کمشنر نے طالبات کی پرفارمنس کی خوب تعریف کی۔ جس طرح یہ چھوٹی بچیوں نے 4-5 دن کی محض ایک گائیڈنس لے کے جس طرح انہوں نے ایکٹ کیا ہے، یہ ایبسولوٹلی اٹ از امیزنگ جی، اور ان کو ہم انشاءاللہ کیش پرائزز بھی دیں گے، اور ان کو ہم ایز رول ماڈل باقی کالجز میں بھی لے کے جائیں گے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے تربیتی سیشن کالج، اسکول اور سول سوسائٹیز میں ہونے چاہیے تاکہ ہر شہری ہنگامی صورتحال میں دفاع کر سکے۔ مرزا جویر اقبال، جی ٹی وی نیوز، جہلم۔ ساہیوال کے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہال میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب ہوئی، جس میں 100 سے زائد خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ مزید بتا رہے ہیں ولسن رضا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ولسن۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بلدیہ ہال میں، جہاں پر کارپوریشن کے ہال میں آج الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد کے لیے
100 चेयर जो हैं ये तोहफे के तौर पर दी जा रही हैं। यहाँ चेयरों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ चेयरमैन अल-खिदमत फाउंडेशन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमने तय किया है कि ज़िला साहिवाल के अंदर कोई माजूर, भले वो अमीर हो गरीब, हमारे साथ रब्ता करे, हम उन्हें व्हील चेयर फ्राहम करेंगे। और ये सिलसिला जनाब सिराजुल हक की क़यादत में पूरे मुल्क के अंदर इसी तरह से जारी है। जी, जैसा कि आपने सुना है, इनका कहना है कि खुशहाल पाकिस्तान के लिए माजूर अफराद की खिदमत करना अल-खिदमत फाउंडेशन का सेवा है। जी। मंडी बहाउद्दीन के कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। तलबा और तालिबात ने चारों सूबों के इलाकाई लिबास में परफॉर्मेंस देकर खूब दाद हासिल की। आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन सुपीरियर कॉलेज के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला और चारों सूबों के कल्चर को उजागर करने के लिए कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया। कॉलेज के तलबा और तलबात ने चारों सूबों के इलाका लिबास में परफॉर्मेंस देकर खूब दाद हासिल की, जबकि पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान का रवायती रक्स, भंगड़ा और रस्सा कशी, सिंगल, डबल रेस समेत रंगारंग प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इदारा के प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज अहमद का कहना था कि वालिदैन बच्चों के तलीम व तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें ताकि मुल्क से नाखवानगी को खत्म करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम की शरह को बढ़ाने में प्राइवेट शोबा में काम करने वाले तलीमी इदारों की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इनका कहना था कि हमें अपनी सकाफत पर फख्र होना चाहिए क्योंकि इस वतन की तहजीब दुनिया की खूबसूरत तरीन तहजीब है। तलबा तलबात को मगरबी कल्चर की बजाय अपनी तहजीबी रवायात का पासबान बनने की अहमियत उजागर करने की जरूरत है। बादशाह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात में ट्रॉफी और शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के साथ आबिद हुसैन, GTV मंडी बहाउद्दीन। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कुदरती आफात, एमरजेंसी सूरत हाल, ट्रैफिक हादसात और दहशत गर्दी के वाक़यात में आवाम को फौरी दुरुस्त आगाही और रहनुमाई के लिए FM रेडियो चैनल लॉन्च करने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया कि कुदरती आफात, एमरजेंसी सूरत हाल, ट्रैफिक हादसात और दहशत गर्दी के वाक़यात में आवाम को फौरी दुरुस्त आगाही और रहनुमाई के लिए FM रेडियो चैनल लॉन्च किया जाएगा। सूबाई वज़ीर के सिंध की हुकूमत की तरक्याती मंसूबों की तशहीर के लिए महकमा इत्तलात की तमाम डायरेक्टरेट को मुतहर्रिक करने की हिदायत की। शर्जील मेमन का कहना था कि NICVD, SIUT, साइबर नाइफ और गंबट अस्पताल शामिल हैं। ये अस्पताल ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक की खिदमत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तरक्की, खुशहाली और अवामी बहबूद के बयानिए को मौसर अंदाज में बनाया जाए, सोशल मीडिया डायरेक्टरेट पर फोकस किया जाए और इसको मज़ीद फाल बनाया जाए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और गोश्त का बारबेक्यू तो हर कोई करता है, लेकिन सिंध के शहर टंडो अलायार में गंदम का बारबेक्यू भी होता है। मज़ीद जानते हैं तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट में। गंदम के लहलहाते खेत, दोस्त तो घूमने आए मगर वहीं पर बारबेक्यू का प्रोग्राम भी बना डाला। वो कैसे? आम दिनों में गोश्त की बारबेक्यू दोस्तों के साथ की जाती है, लेकिन टंडो अलायार में गंदम की बम्पर फसल उतरने के बाद भी इसकी बारबेक्यू होती है। काश्तकारों ने जमीन से गंदम की कटाई की, उसे समेटा और आग जलाकर दोस्तों के संग बारबेक्यू किया और खूब लुत्फानंदोज हुए। आपने सुना होगा कि बारबेक्यू होती है, गोश्त की होती है। हमने गंदम की आज बनाई है और दोस्तों के साथ आए हुए खा रहे हैं और ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका जायका है। हर किस्म की बारबेक्यू होती है, मुर्गी की भी होती है, गोश्त की भी होती है, लेकिन यहाँ हर साल दोस्त आए हैं तो आज हमने गंदम की बारबेक्यू की है। तो आज बैठेंगे, बारबेक्यू की है, दोस्त बैठेंगे साथ में, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, गपशप करेंगे। ज़बरदस्त बारबेक्यू है क्योंकि दोस्तों के साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बारबेक्यू पकाया है हम लोगों ने। लोग हर किस्म की बारबेक्यू खाते होंगे, लेकिन ये कणकी की बारबेक्यू खाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें मज़ा आएगा। दोस्तों के साथ गोश्त की बारबेक्यू की तो क्या बात है, लेकिन देही इलाकों में दिलफरेज मौसम में गंदम के जौबन पर आई फसल की बारबेक्यू और गपशप का अलग ही मज़ा है। ये दिलचस्प रिपोर्ट आपने देखी। इलाकाई खबरों से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।